નમસ્તે દોસ્તો, કેમ છો તમે બધા? આશા કરું છું કે તમે બધાને તમારી બધાની તૈયારી આવી જ રીતના ચાલુ હશે અને કન્ટિન્યુ વાઇઝ અને સ્ટેપ વાઇઝ તમે તૈયારી કરતા હશો. આજની આપણી બેન્ચ આપણે ત્રીજી ફેર બેન્ચ ચાલુ કરી છે કેમ કે વચમાં યુદ્ધ આવી ગયું હતું, XYZ કોઈ પણ કારણોસર. તો આ બેન્ચ આપણી કેવી રીતના રહેશે? કમ્બાઈન્ડ રહેશે. મેથ્સની અને જીકેની આખે આખી SSCGD ના ફ્રી ક્લાસીસ તરીકે છે, યુટ્યુબમાં છે અને આ ક્લાસીસમાં તમને શું હશે કે ગુજરાતી પ્લસ તમને હિન્દીમાં બંનેમાં કન્ટેન્ટ મળશે. તો આપણો મેથ્સનો લેક્ચર છે અને આજે આપણે શું કરવાના છે? તો કે સરેરાશ ભણવાના છે. સરેરાશનો પાર્ટ 1. સરેરાશ મતલબ શું થાય? સરેરાશ એને શું કહીએ આપણે? ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ એવરેજ અને હિન્દીમાં કહીએ છીએ औसत. જે આપણે કહીએ છીએ તેને આપણે ભણવાનું છે. સરેરાશ મતલબ શું થાય? કે કુલ સંખ્યાનો સરવાળો. ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરી તો કે કુલ સંખ્યાનો સરવાળો છેદમાં શું આવે? કુલ સંખ્યા. મતલબ શું થાય તમને હું આગળ સમજાવું. હિન્દીમાં આપણે વાત કરી તો सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं संख्याओं का सम बट्टे में क्या आएगा? कुल संख्या, कुल संख्या या फिर सभी संख्या, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर हम आगे बढ़े तो पहला ही प्रश्न हमारे पास क्या है? 20 और 28 का सरेराश, 20 और 28 का औसत कितना होगा? 20 और 28 નો સરેરાશ કેટલો થશે? तो सिंपल सी वस्तु है, अपने पास जे सूत्र है, मेरे पास जो भी मटेरियल है उसके अलावा मैं बात करना चाहूँ तो क्या कर सकता है? 20 प्लस 28 छेदमा 2 ये आवશે, ये मारा जवाब आवશે कहाँ પછી અને 20 प्लस 28 बटे में 2, ये जो भी आएगा मेरा आंसर आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो 8 और 4 48/2 मतलब कि 24 मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। सही बात है। लेकिन अगर मैं कुछ और सोचना चाह रहा हूँ, इसमें से भी कुछ डिफिकल्ट सोचना चाह रहा हूँ तो क्या होगा? सरेराश का मतलब क्या होता है? कि जो भी चीज है जितने भी लोगों में बट रही है सब में बराबर हिस्से में बटे, वही तो मेरा सरेराश का मीनिंग है। तो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, मेरे पास कितनी संख्या है पहले तो मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास संख्या कितनी कितनी है? एक तो मेरे पास 20 है और एक मेरे पास 28 है। सही बात है। હવે आगे क्या करेंगे हम? एवरेज है, जो भी मेरा एवरेज है उसको मैं अपने मन के हिसाब से लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा? इसको मैं 20 मान लेता हूँ, 20 मानता हूँ। तो 20 लेता हूँ, जो भी है वो 20 मान लेता हूँ या फिर 20 लेता हूँ तो उसका क्या मतलब होगा? तो फिर इस 20 को मैं इस इन दोनों संख्या से कंपैरिजन करूंगा, क्या ज्यादा है या ज्यादा है या कम है, વધારે है कि ઓછું છે। तो कंपैरिजन करूँ तो 20 છે, 20 છે એ 20 ની હારે શું છે? તો કે 20 20 ની બરાબર જ છે, મતલબ કે પ્લસ માઇનસ કાંઈ નહીં થશે, બરાબર છે। પણ 28 છે એ 20 થી કેટલા વધારે છે? તો 20 થી 8 વધારે છે। તો આ બે વસ્તુ મેં જોઈ। હવે મારે મેં ધાર્યો તો શું? 20 ધાર્યો હતો, પણ એકચ્યુઅલમાં આવે શું છે? 24 આવે છે। કેમ કે મને ખબર છે, પણ ખબર ના હોય તો શું કરવું? હવે આ 8 પ્લસ આવ્યા, 8 વધારે છે ને, 8 વધારે આવ્યા તો એનો શું મતલબ છે? તો કે 8 નો વધારો થયો, કેટલી સંખ્યામાં થયો? તો કે મારી આ 1 અને 2 સંખ્યામાં 8 નો વધારો થયો, કેમ કે મેં 20 ધાર્યો હતો એટલે। અહીંયા લગીન સમજાઈ ગયું? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो આ કેટલા આવ્યા મારી પાસે? +4 મારો આન્સર આવ્યો। તો +4 શું આવ્યો? કે જે વસ્તુ મેં આ ધારી હતી ને એમાં મારે +4 કરવાનો છે। 20 + 4 मतलब कि 24 મારો જવાબ આવશે। અને આવી જ રીતના અહીંયા -4 આવ્યું હોત તો આપણે માઇનસ કરત। હવે આગળ વધી तो 34 और 56 का औसत कितना होगा? 34 और 56 का औसत क्या होगा? ગુજરાતીમાં લખેલ છે, આપણે તમે વાંચી શકો છો અને હિન્દીમાં ગમે એક લેંગ્વેજમાં ભણાવવું આસાન છે। બે લેંગ્વેજનું કમ્પેરિઝન કરી તો તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો। કાં તો તમે કહો તો હિન્દીમાં બોલો ને કાં કહો તો ગુજરાતીમાં બોલો। તો હિન્દી કમ્ફર્ટેબલ રહે, કેમ કે આંકડા છે તો ઇંગ્લિશમાં જ લખાશે ને, એ બધાને ગુજરાતી વાળાને પણ ખબર પડશે અને हिंदी वाले ने खबर પડશે। એટલે मेन लैंग्वेज हिंदी रखूँ આપણે। 34 और 56 का औसत कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? हमारी जो भी मेथड है मेथड 2 अप्लाई करेंगे। मेथड 1 आप करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? इधर दो संख्या लिखेंगे 34 और 56। फिर मैं एवरेज क्या मान लूंगा? एवरेज मानता हूं मैं, क्या मानता हूं? एवरेज मानूंगा मैं। क्या मानूंगा? एवरेज इन दोनों के बीच की संख्या मानूंगा या फिर इन दोनों में से कोई भी संख्या मानूंगा या फिर मुझे जो पसंद आए
वो मैं मानूँगा। तो एवरेज में मान लेता हूँ, चलिए आप भी इसके 40 में मान लेता हूँ कि 40 इसका एवरेज होगा। मेरे हिसाब से 40 एवरेज होना चाहिए। तो 40 एवरेज होना चाहिए, तो ये 40 से ये 34 है, 40 से कितना कम है? तो ये 6 कम है, और 56 है, वो 40 से कितना ज़्यादा है? तो ये 16 ज़्यादा है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ आपस में, तो क्या आएगा? -6 प्लस 16, मतलब कि +10 मेरे पास आएगा। सही बात है या नहीं? +10 आएगा, लेकिन वो कितनी संख्या में आएगा +10 मेरे पास? +10 आएगा, वो कितनी संख्या में आएगा? एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 2 संख्या में आएगा। मतलब कि +2 मेरे पास कितने में बँटेगा? 2 संख्या में बँटेगा। क्योंकि जितनी संख्या है, एक आप लाए हो तो जितने बंदे हैं सब में बाँटोगे ना, एक में तो नहीं बाँटोगे। उस वजह से कितने में बँटेगा? तो ये 5 मेरे पास आंसर आया, +5 आया या -5 आया, तो आप बोलोगे सर ये प्लस था इस वजह से +5 आया। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? +5 कर देंगे। तो मतलब कि मेरा एवरेज कितना निकल के आया? 45। जो मैंने 40 रखा था उससे 5 ज़्यादा आया। क्यों आया? वो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है? अभी मान के चलिए, अभी 2 संख्या थी, अभी हमारे पास 3 संख्या है, तो फिर क्या करेंगे? 20, 28, 36 का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? पहले तो हम संख्या लिख लेंगे 20, एक हमारे पास है 28 और एक हमारे पास है 36। फिर हम इधर क्या लिखेंगे साइड में? ये सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे। क्या करोगे? सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे। आपका आंसर इतनी आसानी से आएगा कि आप भी सोच नहीं पाओगे कि इससे पहले मैंने ऐसा कभी सीखा ही नहीं था। तो एवरेज में क्या मान के चल रहा हूँ? तो आप मान के चलो, एवरेज में क्या मान के चलूँ? आप बोलो, वो मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए। तो एवरेज में चलिए इसमें 30 मान लेता हूँ। एवरेज में इसमें 30 मान लेता हूँ। कोई सी रैंडम संख्या मान लूँगा, 10 से 10 के मल्टीपल में मानूँगा मैं। क्यों? इसकी वजह से मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर मैंने एवरेज 30 मान लिया है, तो फिर ये क्या होगा? 30 से ज़्यादा है या कम है? 20 कम है। कितना कम है? तो कि ये 10 कम है। सही बात है, ये 10 कम है, मैंने लिख लिया। 30 से 28 कितना कम है या ज़्यादा है? तो कि 28 2 कम है। 36 है, तो ये कितना है? 6 ज़्यादा है। सही बात है। फिर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा? -12 आएगा मेरे पास। और इन अकेलों को ऐड करूँगा तो +6 आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का आया? तो कि -12 में से +6 गया, तो -6 बचा। कितना बचा? -6। तो अभी ये फिर आगे क्या करेंगे? कितनी संख्याओं में बँटेगा ये? तो 1, 2 और ये 3। 3 संख्याओं में बँटेगा, मतलब कि 3। लेकिन चिन्ह क्या रह गया? माइनस का ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास नेगेटिव टर्म आया, पॉजिटिव टर्म तो नहीं आया। कितने में बचेगा? -2 मेरे पास आंसर आएगा। तो -2 आया, वो क्या करूँगा मैं? इसमें से -2 करना पड़ेगा, मतलब कि 28 जो भी होगा मेरा आंसर होगा। इन तीनों संख्या का एवरेज क्या होगा? 28 होगा। मैं 28 भी इसमें मान सकता था। अगर 28 में मैंने माना होता, चलो इन दोनों संख्या की रैंडमली संख्या है। एक 20 है, 28 है और 36 है। सही बात है? और एवरेज अगर मैंने 28 मान लिया होता तो क्या होगा? तो पहली बात तो 28 में 0 आ जाता, सही बात है। और 28 20 से कितना ज़्यादा है या कम है? क्योंकि 20 28 से 8 कम है और 36 है वो 8 ज़्यादा है, सही बात है। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते तो क्या आता हमारे पास? इन दोनों का डिफरेंस लेते तो 0 आते, मतलब कि जो भी हमने एवरेज निकाला है, जो भी हमने एवरेज अपने मन में सोचा था, वो एवरेज सही है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 40, 48, 50, 62 का औसत क्या होगा? तो हमारे पास क्या है? 4 संख्या है, तो जैसे हम करते थे वैसे ही लिख लेंगे। कौन-कौन सी संख्या है? 40 है, 48 है, 50 है और 62 है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लिख लेंगे इधर एवरेज, जो भी हमने दिमाग में सोचा है वो एवरेज लिख लेंगे। या फिर आप ऑप्शन से भी किसी एवरेज को लिख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मैं 50 एवरेज लिख रहा हूँ, क्योंकि 50 के इर्द-गिर्द ही है। क्या 50 होगा या फिर 50 से नीचे होगा या फिर 60 होगा? 50 के इर्द-गिर्द है, तो मैं 50 को एवरेज मान लेता हूँ। अगर मैं 50 को एवरेज मानता हूँ, तो क्या होगा? 50 40 से वो 50 से ज़्यादा है या कम है? तो 50 से कम है। कितना कम है? 10 कम है। ये 50 से कितना कम है? 2 कम है। ये 50 के बराबर है, मतलब कि 0। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, मतलब 10 और 2 -12 और ये +12, तो ऐसे ही है। ये माइनस और प्लस दोनों 12-12 है, मतलब कि इधर डिफरेंट क्या आया? इधर डिफरेंट क्या आया? तो कि इधर डिफरेंट आया 0, मतलब कि जो भी एवरेज हमने निकाला है, जो भी हमने अपना दिमाग में सोचा है, वो एग्ज़ैक्ट बैठ गया है।
अगर मैंने 45 लिखा होता तो क्या होता? तो फिर इसमें 5 ज़्यादा करना पड़ता, सही बात है ना? वैसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो 129, 152, 111, 140 का औसत कितना होगा? 138, 152, 11, 140 का औसत कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, जैसे हम हर वक्त करते हैं वैसा ही करेंगे। 138, 152, 111 और 140 इधर हम लिख लेंगे ऐसे ही। फिर हम क्या करेंगे, इधर हम एक अपना अलग से कॉलम बनाएंगे, इधर हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज क्या लिखेंगे? जो भी हम अपने दिमाग में आया वो हम एवरेज इसमें लिख लेंगे। मैं क्या लिखता हूँ इसमें? मैं इसमें 11 से, चलो 100 मान लेते हैं, चलो सबसे बढ़िया होगा। 100 सबके दिमाग में आ रहा होगा। मैं 130 भी ले सकता था, 120 भी ले सकता था, लेकिन मैं 100 मान रहा हूँ क्योंकि 100 से सभी ज्यादा है और मुझे प्लस ही करना पड़ेगा, सही बात है, इस वजह से। तो फिर ये क्या है, आगे हम देखते हैं। तो ये क्या है, 138 से कितना प्लस है? 38 प्लस है, ये कितना प्लस है? 52 प्लस है, ये कितना प्लस है? 11 प्लस है, और ये कितना प्लस है? 40 प्लस है। अभी मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 120 मानता तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन 100 सबके दिमाग में आ रहा था, इस वजह से मैंने 100 लिया, क्योंकि 100 से ज्यादा ही होगा, सारे ऑप्शन भी 100 से ज्यादा ही है, उस वजह से। तो 20 लेता मैं तो सबके बीच में वाला आ जाता मेरे। 115 है, 135 है, 125 है और 140 है, तो सबके बीच में मेरा औसत आता था, उस वजह से मैंने लिया था। लेकिन सबके दिमाग में 100 आ रहा था, इस वजह से मैंने 100 लिया। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 38 और 52 कितना होगा? पहले तो आप दो दो टर्मिनल जोड़ो, बाद में पूरा जोड़ो। 38 और 52 कितना होगा? 38 और 2 40, 40 और 5 कितना हो गया? समझे? 90। 90 और 40 कितना होगा? 100 और 130, 130 ये कितना हुआ? 130, 130 और 11 कितना होगा? तो 141, सही बात है। और 141 मुझे प्लस करना है, लेकिन 141 में प्लस किस में करूंगा? 141 मुझे प्लस करना है, लेकिन 141 प्लस मैं करूंगा किस में? तो किस में करूंगा मैं? कितनी संख्याओं में करूंगा? क्योंकि मेरे पास एक है, दो है, तीन है और ये चार संख्या है, तो चार संख्या में मैं 141 प्लस करूंगा। फिर जो भी आंसर आएगा वो मैं उसमें 100 में ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा, सही बात है। यही तो हमारा सिंपल सा फंडा है, और इसी फंडे पे हम पूरा चैप्टर क्लोज करेंगे। तो चार तिया कितना होगा? 12 होगा। कितना बच्चा हासिल का? 2 बच्चा। चार पंजे कितना होगा? चार पंजे 20 होगा। कितना बच्चा हासिल का? एक बच्चा। फिर पॉइंट लिखा, इधर पॉइंट छोड़ा तो 10 हो गया, मतलब कि चार दूनी 8, फिर 2 बच्चा, फिर से जीरो उतरा और पॉइंट के बाद जीरो, ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो 20 हुआ, चार पंजे 20, मतलब कि 35.25 प्लस हुआ मेरे पास। प्लस कितना हुआ? 35.25 मेरे पास प्लस हुआ, मतलब कि 135.25। अभी आप समझ सकते हो, अगर मैंने 120 लिया होता तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती या नहीं हो जा सकती? मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हो। अगर आप 100 मानते हो या फिर आप टोटल करके फिर जो जितनी संख्या है उसमें डिवाइड करते हो, तो भी आपका आंसर तो यही आना है, लेकिन आप किसमें एक्यूरेसी और स्पीड ज्यादा मेंटेन कर सकते हो, उसमें कहीं पे भी कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसमें डेटा थोड़ा-सा छोटा होगा हमारा, उस वजह से हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट कैलकुलेशन निकलेगी, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत नहीं होगी उस वजह से। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे देखेंगे, 249, 199, 216 का औसत क्या होगा? तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, 249, 199 और 216, सही बात है। फिर हम क्या करेंगे, इधर इधर हम अपना एवरेज लिख लेंगे। एवरेज क्या लिखेंगे हम? मान के चलो आप 200 रख लेते हो, हम 200 मान लेते हैं, 200 से ज़्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन हम 200 मान लेते हैं। तो इधर क्या आएगा? -1 आएगा। इधर क्या आएगा? +16 आएगा, क्योंकि 16 ज़्यादा है। फिर इधर +39 आएगा, सही बात है। यहाँ तक समझ में आया? अगर +39, -1 और +16 है, इसको मैं +39 और +15 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इसमें कोई दिक्कत है? +39 और इन दोनों को मैं करूँ तो +15 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। अगर मैं इसको अपने दिमाग में सोल्व करना चाहूँ तो आगे आप छोटी-छोटी बातें आगे आपको बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड से खेलना सीख जाओगे, और मैथ्स जो भी है ना वो अपने माइंड का खेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा। तो इसको मैं 40 मान लूँ तो क्या होगा? तो 40 ये और 15 ये, 40 और 10 कितना होता है? 50, 50 और 5 55, 55 में एक कम, क्योंकि ये 39 है, उस वजह से 55 में एक कम, मतलब कि 54 मुझे प्लस करना पड़ेगा।
किसमें प्लस करना पड़ेगा मुझे? 1, 2 और 3 में प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब कि कितना होता है 18 तिया 54 होता है, लेकिन मुझे नहीं पता तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे डिविजिबली का रूल पता है, वो भी मैंने आपको बता रखा है कि आपको टर्न का नियम कैसे होता है वो। तो 3 दूनी 6 होता है, बच जाता है, तो 3 एकम 3 कितना बचा? 2 बचा। तो कितना हुआ? 24 हुआ। तो 3 अट्ठे 24। सही बात है, 18 आया तो मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 18 प्लस करना पड़ेगा, मतलब कि 218 जो भी आया वो मेरा आंसर है। 218 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन आराम से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो एक बार फिर से वापस जाओ, अच्छे से समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन एक बार जब भी दिमाग में बैठ गया या दिमाग में सेट हो गया तो फिर इससे आसान, मेरे से आसान सब्जेक्ट कोई जीवन में आपको कोई लगेगा ही नहीं। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। 53, 53, 58, 58, 58 का औसत कितना होगा? मेरे पास 5 टर्मिनल है, लेकिन इसको हम 2 मेथड से करेंगे। अपनी मेथड एक ही है, अपनी जो भी रीत है वो एक ही है, अपना जो भी नियम है वो एक ही है, लेकिन हम इसमें भी 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम हर वक़्त करते हैं वैसे ही लिख लेंगे। 53, 53, 58, 58 और 58 मेरे पास ये 5 संख्या है। इधर मैं लिख लूँगा अपना एवरेज क्या निकल के आ सकता है। अगर मैं इधर एवरेज को 53 मान लेता हूँ, चलो अभी 2 ही संख्या है मेरे पास उस वजह से, तो इधर क्या आएगा? 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर क्या आएगा? प्लस सॉरी 5 आएगा, इधर क्या आएगा? +5 आएगा मेरे पास, इधर भी +5 और इधर भी +5, तीनों के मिला के कुल मिला के मेरे पास +15 हो गए। +15 कितने में बटेगा? तो 5 संख्याओं में बटेगा, मतलब कि +3 आएगा मेरे पास। तो +3 किसमें ऐड करना है मुझे? इसमें ऐड करना है, तो +3 3 में इसमें ऐड कर देता हूँ। तो मतलब कि 56 मेरा जो भी होगा एवरेज होगा, सही बात है। अगर मैं अभी मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे पास मुझे दिख रहा है कि 53 नंबर की संख्या 2 बार है, 2 बार है ना? तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, तो 2 नंबर है मेरे पास, तो 2 संख्या है। 2 संख्या मेरे पास कितनी है? 53 है, और 3 संख्या मेरे पास कितनी है? 3 संख्या मेरे पास कितनी है? 58 है, सही बात है। फिर इधर मैं अपना लिखूँगा एवरेज क्या होगा? इधर मैं क्या लिखूँगा अपना? एवरेज क्या होगा? तो इन दोनों में से एक संख्या को मैं एवरेज मान लेता हूँ। तो इधर में चलो इन दोनों में से नहीं मानते हम, फिर आपको कन्फ्यूज़न पैदा होगा। इन दोनों में से नहीं मानते हम। हम 55 को एवरेज मान लेते हैं, तो इससे थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, इस वजह से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात, एवरेज मैंने क्या माना? 50 माना। तो अभी ये कितना कम है या फिर ज़्यादा है? फिर आगे वाली पीछे वाली संख्या को हम बाद में देखेंगे। ये कम है कि ज़्यादा है? तो 55 है वो 53 से 2 ज़्यादा है, मतलब कि ये 2 कम है, -2 हुआ, कोई बात नहीं। ये कितना है? तो ये +3 है, सही बात है। यहाँ तक समझ में आया? फिर हम आगे क्या करेंगे? तो फिर हम आगे ये देखेंगे, ये -2 है, लेकिन कितनी संख्याओं में है? तो क्या आप बोलोगे सर ये 2 संख्याओं में है, तो मतलब कि -2 गुणे में 2। फिर ये +3 है अब, लेकिन वो +3 कितनी संख्याओं में है? तो आप बोलोगे सर 3 संख्याओं में है, तो कि +3 गुणे में 3। ये कितना आया मेरे पास? -4, और ये मेरे पास कितना आया? +9 सॉरी, +9 आया। अब इन दोनों का कंपैरिज़न करेंगे तो कितना बचा मेरे पास? +9 में से -4 गया, तो मेरे पास +4 आंसर बचा, +5 आंसर बचा। +5 बचा, वो कितने संख्याओं में बटेगा? तो हमारे पास 2 संख्या तो इधर है और 3 संख्या इधर है, मतलब कि 5 संख्याओं में बटेगा, मतलब +1 आएगा मेरे पास। तो 55 में +1 निकालूँ तो 56 मेरे पास एवरेज आएगा। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, जैसे भी करो, आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। वैसा ही क्वेश्चन सेम मैं अलग लैंग्वेज पे आपको दूँ तो क्या कहोगे? देखो आगे देखो, 3 संख्याओं का औसत 137 है, 2 संख्याओं का औसत 152 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप मैंने आपको बताया ना, सोल्व करने का तरीका अलग है, बाकी सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो 3 संख्याओं है, तो मेरे पास 3 नंबर है, 3 नंबरों का औसत कितना है? एक मेरे पास 3 नंबर है और एक मेरे पास 2 नंबर है, सही बात है। तो 3 नंबर का औसत कितना है मेरे पास? 3 संख्याओं का औसत है मेरे पास 137, और 2 नंबर का है 152।
और कुल मिला के मेरे पास कितना है? कुल मिला के एवरेज कितना निकालना है मुझे? 5 नंबर का एवरेज निकालना है। तो क्या हो सकता है? मैं अपने दिमाग में सेट कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में मुझे ऐसा कुछ औसत चाहिए। इन दोनों के बीच में मैं 140 को मान लेता हूँ कि 140 एवरेज इन दोनों का। इन सब का एवरेज कितना होगा? तो कि 140 इन सब का औसत हो सकता है, एवरेज हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इन दोनों के बीच का इतना एवरेज हो सकता है, तो इसमें में कितनी दिक्कत है? 140 से कितना कम है? ये 3 कम है। और ये कितना ज़्यादा है? तो फिर ये 12 ज़्यादा है, सही बात है। तो फिर ये 3 कम है, वो किसके हिसाब से कम है? कितने के हिसाब से ये 3 कम है? तो फिर 3 संख्याओं के हिसाब से, तो -3 गुने में 3 मतलब कि -2 का -9 का डिफरेंस आया, सही बात है। अगर मैं ऐसे ही इसमें देखूँ तो +12 है, कितने के हिसाब से है? 2 के हिसाब से, तो क्या +12 गुने में 2 मतलब कि प्लस का 24 मेरे पास इधर से निकल के आया। प्लस का 24 और माइनस का 9, तो 24 में से 9 निकालूँ तो कितने का आएगा मेरे पास? प्लस में आएगा कि माइनस में आंसर आएगा? पहले तो वो मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर प्लस में आंसर आएगा। प्लस में भी कितना आएगा? 24 है और -9, 24 में से 9 निकालना है, जो भी बचा वो मेरा आंसर आएगा। 24 में से 9 कैसे निकालेंगे? अगर बड़ी संख्या आएगी तो अपने दिमाग में कैसे करेंगे? पहले तो 9 है, उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लो, 5 और 4 9 होता है, सही बात है। तो 24 में से 4 गया तो 20 बचा, 20 में से 5 गया तो 15 बचा। कितना आया मेरे पास? प्लस का 15 आया, प्लस का 15 आया, लेकिन ये कितने में बटेगा? प्लस का 15 आया, वो कितने में बटेगा? मेरे पास तो 3 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, मतलब कि ये 5 नंबर में बटेगा। तो कितना मेरे पास आंसर निकल के आएगा? प्लस का 3 निकल के आएगा, तो 140 प्लस का 3 मैं निकालूँगा तो 143 मेरा आंसर होगा। सही बात है, यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। तो रीना 1250 मूल्य की 5 साड़ी खरीदती है और 27 मूल्य वाली 3 साड़ी खरीदती है, तो प्रत्येक साड़ी की कीमत क्या होगी? सही बात है। तो पहले तो वो कितनी साड़ी खरीद रही है? 5 साड़ी, और फिर अगली बार वो कितनी साड़ी खरीद रही है? 3 साड़ी खरीद रही है। कुल मिला के सभी साड़ियों का मूल्य क्या होगा? औसत मूल्य क्या होगा? प्रत्येक साड़ी का मूल्य बोला है, मतलब कि औसत मूल्य क्या होगा? वही तो उसको बताना चाह रही है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, जो भी हमने किया है वही करना है, दूसरा कुछ तो करना नहीं है। तो हम देख लेंगे पहले तो 5 साड़ी की कीमत क्या होगी? 5 साड़ी की कीमत, फिर उसके बाद कितने साड़ी ली उसने? 3 साड़ी ली, तो फिर 3 साड़ी की कीमत क्या होगी? और उसके अलावा टोटल मैं जो भी एवरेज निकालना चाह रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, टोटल उसके पास कितनी साड़ियाँ होंगी? तो क्या 8 साड़ियाँ टोटल उसके पास होगी, उसका ही मुझे एवरेज निकालना है, सही बात है। तो क्या आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 5 साड़ी का मूल्य कितना है मेरे पास? 2250 रुपये मूल्य है, और 3 साड़ी का मूल्य कितना है? 2750 रुपये है। तो मैं एवरेज क्या मानूँगा? आप चल कर मान के चलो कि एवरेज में इन दोनों के बीच का मान लेता हूँ, 2500 रुपये में एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 2500 इन दोनों का एवरेज होगा। अगर मैं 2500 मान के चल रहा हूँ तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? कि ये माइनस 250 होगा और ये प्लस 250 होगा। मैंने 2500 इसी वजह से माना है कि ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ना आए, उस वजह से। सही बात है। तो फिर इसमें हम करेंगे क्या सर? इसमें हम करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है कि 250 उड़ गया। जैसे ही आप सोचोगे इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर सब निकल गया। लेकिन मेरे भाई वो बात नहीं है, कितने में 250 बढ़ रहा है? 5 में बढ़ रहा है, मतलब कि क्या होगा? -250 गुने में 5 होगा इधर, और इधर कितने में बढ़ रहा है? 3 में बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस 250 गुने में मेरे पास 3 होगा। अभी इन दोनों का आपको डिफरेंट लेना है, दूसरा कुछ तो लेना नहीं है, आप इन दोनों का डिफरेंट ही लेना है ना, तो आप 250 कॉमन निकाल लो, कोई बात नहीं, 250 कॉमन निकाल लो, प्लस माइनस बाद में सोचेंगे। 250 कॉमन निकालो, इधर क्या आएगा? 5 में से 3 गया तो मतलब कि 2 आएगा, तो इधर मेरा आंसर कितना आया? 500 आया, वो बात तो सही है। लेकिन माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो कैसे पता चलेगा हम? क्योंकि हमें डिफरेंट कितना आया, डिफरेंट निकालना है, मतलब कि एक संख्या उसमें से पूरी निकाल देने की है। तो मैं ये संख्या पूरे की पूरी इसमें से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, उस वजह से 2 मल्टीपल बचा। किसका 2 मल्टीपल बचा? मेरे पास 2 मल्टीपल बचा, लेकिन किसका 2 मल्टीपल बचा? तो कि इसका 2 मल्टीपल बचा, मतलब कि ये नेगेटिव टर्मिनेंट आएगा, मतलब कि ये 500 आएगा। ये आपकी सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा कुछ नहीं है। मैथ्स आपकी सोचने की
क्षमता के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। माई नेगेटिव डिटरमिनेंट आया, तो नेगेटिव 500 आया तो कितने में आएगा 500? नेगेटिव 500 में आया तो वो कितने में आएगा? तो 5 और 3 8 साड़ियों में आएगा। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 250/4 लिख सकता हूँ, 125/2 लिख सकता हूँ। मैं पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप फटाक से दिमाग में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नेगेटिव डिटरमिनेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 125/2, तो 120, 120 का आधा कितना होता है? 60 होता है, सही बात है। 5 का आधा कितना होगा? 2.5 होता है, तो मतलब 62.5 मेरे पास नेगेटिव टर्मिनियन में है। तो इसमें से मुझे 62.5 माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे मैम? कैसे माइनस करेंगे हम? तो 5 और 5 कितना होता है? 10। हासिल का कितना है? 1। तो 3 और 7 कितना होता है? 3 और 7 कितना होता है? 10। फिर हासिल का 1। 7 और 3 कितना होता है? 10। फिर हासिल का 1। 1 और 4 कितना होता है? जो कि 5। फिर हासिल का कुछ नहीं बचा, तो 2 ऐसे 24, 2437 मेरे पास आंसर, 2437.5 मेरा जो भी हो एवरेज है। इतनी कुछ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा-सा टिपिकल वर्ड लगा होगा, लेकिन ये आराम से और ऐसी भाषा है कि जो एक बार आपके दिमाग में घुस गई ना, तो पूरा एवरेज चैप्टर इसी से अपना निपट के जाएगा। आगे देखते हैं। महेश 1250 मूल्य के 3 शर्ट और 1450 मूल्य वाले 2 शर्ट खरीदता है, तो सभी शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा? वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक तो 3 शर्ट खरीद रहा है मेरे पास, 3 शर्ट है, और दूसरी तरफ वो 2 शर्ट खरीद रहा है, और मुझे पूछा कितने का है? कि पाँचों शर्ट का एवरेज मूल्य क्या होगा? पाँचों शर्ट का एवरेज मूल्य क्या होगा? तो 3 शर्ट का मूल्य कितना है? ₹1250 का 1 शर्ट है, वैसे 3 शर्ट खरीदे, 2 शर्ट, 1 शर्ट के मूल्य 1450 है, ऐसे 2 शर्ट खरीदे, तो कुल मिला के उसका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? कोई सिंपल सी बात है, मैं किसी को भी मान लूँगा, तो अगर मैं मान के चलो मैं 1200 को ही पकड़ के चल रहा हूँ, अगर 1200 नहीं पकड़ना तो मैं क्या पकड़ सकता हूँ? आप मान के चल रहे हो 1200 नहीं लिखना है, तो मैं इसमें से एक संख्या लिख लेता हूँ, 1250 संख्या को ही मैं मान लेता हूँ। तो ये कितना आएगा? ये मेरे पास प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ये कितना प्लस आया मेरे पास? 1450 है। 1250 से कितना? 1350 और 1450, मतलब कि 200 प्लस आया। तो 200 प्लस कितने में बटेगा मेरे पास? तो 3 ये है, 2 ये है, मतलब कि 5 में बटेगा। तो प्लस कितना आएगा मेरे पास? 40 मेरे पास आंसर आएगा, कि नहीं आएगा? प्लस 40 आएगा, तो मैं 1250 लिखा है, तो कितना आएगा मेरे पास? 1250 मैंने मान के चला है, तो कितना आएगा? ये मुझे निकालना होगा ना। लेकिन बात मेरी यही है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो? गलती को मुझे सुधारना है, क्योंकि जल्दी-जल्दी में मेथड में गलती नहीं होनी चाहिए। सही बात है। इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती हुई है, मुझे वो बताओ। कहाँ पे गलती हुई है? जल्दी से बताओ। कि मैं बताऊँ? चलिए मैं बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन और सभी मेथड, सारी मेथड सब कुछ सही है। लेकिन हम फिर आगे क्या करते थे वो आप भूल गए ना, ये कितने में बढ़ा है? 3 में बढ़ा है, तो 0 मल्टीपल में 3 होगा, मतलब कि 0 ही आएगा। और इधर हम देखें तो कितने में बढ़ा है? तो 200 गुने में 2 में बढ़ेगा, मतलब कि प्लस 400 बढ़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 400 का डिफरेंट है। अब तो कितने में बटेगा वो? 8 में बटेगा। सही बात है। अभी दिमाग में आया कुछ के नहीं आया? अगर इसको हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो 8 पंजे 40, मतलब कि 50 का एवरेज टूटेगा। 50 का एवरेज टूटेगा, तो उसका मतलब क्या है? कितना आएगा? 50 आएगा? कि दूसरा कुछ आएगा? जल्दी से बताओ मुझे। आंसर जो कुछ भी हो, आप मेरी बात को समझो, क्योंकि इसमें सारा कुछ गलत है एक ही क्वेश्चन में। क्योंकि गलत से सही का पता चल सकता है, सही से गलत का पता नहीं चलता। उस वजह से अभी भी क्या गलती है हमारे पास, वो आप सोच सकते हो या कह सकते हो हमें, कि नहीं बोल सकते? मैं बताऊं आपको कि आप गलती कहाँ कर रहे हो? क्योंकि मैं गलती ही करूंगा वापस। जब भी मैं गलती करूंगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि 3 और 2 5 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, मतलब कि 80 प्लस होगा मेरे पास।
इसमें 80 प्लस करना होगा तो कितना आएगा मेरे पास? 5 और 5 10 और 3 13 और 3 1330 30 मेरे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गलती मत करो। मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ। इतना क्वेश्चन मुझे नहीं आता ना, इतना सारा कर रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे क्या? वो बात नहीं है, लेकिन गलती से ही आदमी सीखता है। गलती किए बिना आदमी सीख नहीं पाता, उस वजह से। फिर आगे देखते हो। क्लास एक के 42 विद्यार्थियों का औसत अंक 137 है और क्लास बी के 28 विद्यार्थियों का औसत अंक 152 है, तो क्लास ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन आया, उसके वजह से सारे बच्चों में से 90% बच्चों का एक ही डाउट होगा कि सर ये तो बड़ी संख्या है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर रुको मेरे भाई, कितना मल्टीपल करना पड़ेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर रुको आप। क्या है हमारे पास? पहली बात तो क्लास ए से उसके 42 विद्यार्थी है, उसका एवरेज कितना है? 137। और क्लास बी के 28 विद्यार्थियों का औसत कितना है? औसत कितना है मेरे पास? 152 है। कुल मिला के मुझे निकालना कितना है? सारे विद्यार्थियों का औसत निकालना है, तो 42 और 28 कितना होता है मेरे पास? 70। तो 70 विद्यार्थियों का औसत मुझे निकालना है। कुल मिला के 70 विद्यार्थियों का औसत मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज को मैं मान लेता हूँ कुछ भी, क्योंकि हमारी वही मेथड है। एवरेज को हम मान लेते हैं कि कितना होगा, एवरेज हमारे पास कितना होगा। तो मैं 140 एवरेज मान लेता हूँ कि 140 होगा। तो ये फिर कितना होगा? -3 होगा। और ये कितना होगा? तो +12 होगा मेरे पास। क्या होगा? +12 होगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अभी हम क्या करेंगे सर? ये 42 गुने में 3 28 गुने में 12 करेंगे तो फिर हमारी कैलकुलेशन बढ़ नहीं जाएगी। तो बात तो वो नहीं है, अभी इसको सोचो। अभी इसको आप क्या से लिख सकते हो? इसको, इसको और इनको, तीनों को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? क्योंकि हमें रेशियो से मतलब है, हमें दूसरे किसी से मतलब ही नहीं है। तो 7 के डिविजन में सब है, सही है ना? तो 7 छंग 7 छक कितने होते हैं? 7 छया 42 और 7 चौके 28 होता है, 6 4 और इसको 7 से करूँ तो 10, तो नहीं हुआ ना? 6 और 4 10 होता है, 42 और 28 70 होता है। किसी भी टर्मिनियन में लिखूँ मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर 6 को इससे मैं गुना कर लेता हूँ, तो -3 गुने में 6 मतलब कि -18 और 4 को इसमें गुना कर लेता हूँ तो +12 गुने में 4 मतलब कि +48। तो इधर तो मुझे 10 है ही मेरे पास, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो फिर हम करेंगे क्या? वही तो मुझे देखना है। 18 और 39 दोनों को डिफरेंट करो तो कितना आएगा? 48 में से 18 निकले तो कितना आएगा? 10 40 और 10 30 +30 बचा मेरे पास। तो +30 कितने में बचेगा? 10 में बटेगा, मतलब कि +3 आएगा। तो जो भी मैंने एवरेज निकाला उसमें से +3 मुझे करना पड़ेगा। तो 143 मेरा आंसर। सिंपल सी बात है। इतनी सी बात आपके दिमाग में अभी तक नहीं घुटी यार? हमने 10-11 प्रश्न सोल्व कर लिए, तो अभी तो हद हो गई ना? क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है हमारी, इतनी आसान लैंग्वेज में आपको कोई समझाता भी नहीं है मेरे भाई। आगे देखो। एक क्लास की 39 लड़कियों के औसत अंक 113 है, जब उसी क्लास के 26 लड़कों के औसत अंक 89 है, तो सभी के औसत अंक क्या होंगे? एक क्लास है, उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। लड़कियों के औसत अंक दे रखे हैं, लड़कों के औसत अंक दे रखे हैं, तो कुल मिला के सबके औसत अंक कितने होंगे वही तो मुझे निकालना है। तो कितनी लड़कियां हैं? पहली बात तो 39 लड़कियां हैं। और कितने लड़के हैं? तो 26 लड़के हैं। तो इधर में गर्ल्स लिख सकता हूँ और इधर मैं आपको बॉयज लिख सकता हूँ। इधर मैं गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों बोथ में लिख सकता हूँ। तो पहली बात तो क्या करेंगे हम? हमारी सिंपल सी मेथड है। पहली बात तो हम क्या कर लेंगे? इसको ही डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें इससे बड़ी दिक्कत होती है। तो 13 से काटूंगा तो मैं 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। तो कुल मिला के मेरे पास गर्ल्स और बॉय कितनी है? 5 है। तो अभी मुझे थोड़ी सी दिल को सुकून मिला सर, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम आएगी उस वजह से। तो फिर इसके औसत लेकर 39 लड़कियों के औसत कितना है? एवरेज कितना है? तो 113 है मेरे पास। और 26 लड़कों का औसत कितना है मेरे पास? 89 है। तो कुल मिला के एवरेज कितना होना चाहिए? तो मैं कुछ भी अपने दिमाग में सोच लेता हूँ। चलो मैं 100 मान लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 100 के बीच में ही है, ये बड़ा है और ये कम है, उस वजह से मैं 100 मान लेता हूँ। तो 100 मानूंगा तो ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो 100 से ये 11 कम है, तो ये -11 आएगा। 100 से कितना प्लस ज्यादा है? तो 13 ज्यादा है। सही बात है। अभी फिर हम क्या करेंगे आगे?
आगे हम क्या करने वाले हैं, तो कि आगे हम देखेंगे कितनी संख्याओं में है, तो कि +13 3 संख्याओं में है, मतलब कि प्लस का 39 आया मेरे पास। और ये 11 कितनी संख्याओं में है, -11 2 संख्याओं में है, मतलब कि माइनस का 22 आया मेरे पास। तो 39 में से 22 निकालो तो कितना आएगा? 39 में से 2 निकाल दो पहले तो आप, तो कितना आएगा? 37 आएगा। 37 में से 10 निकाल दो आप, कितना आएगा? 27। 27 में से भी फिर 10 निकाल दो, कितना आएगा मेरे पास? 27 में से भी 10 निकाल दो, कितना आएगा मेरे पास? तो 17 प्लस का 17 आया। तो प्लस का 17 कितने में बटेगा? 3 और 2 5 में बटेगा, मतलब कि 5 तिया कितना होगा? 15 होगा। कितना बचा? 5 तिया 15, 2 बचा। 5 चौके 20, 3.4। सही बात है, मेरे पास 3.4 प्लस नेगेटिव टर्मिनल में नहीं आया, पॉजिटिव टर्मिनल में आया, तो इसमें प्लस 3.4 में करूंगा तो कि 4 3 और 10 103.4 मेरा आंसर। कितना आसान हुआ, आसान हो रहा है ना। इसको आप वैसे करते तो कितना दिक्कत होगा, तो फिर आप क्या करते? 39 को 113 से मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को आप ऐड करते, ऐड ही करते ना, वही तो करते ना, दोनों को ऐड करते। ऐड करने के बाद जो भी आया वो 26 और 39 को प्लस करके डिवाइड कर देते। तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है या इसमें टाइम लगता है? जल्दी से बता दो कमेंट में एक बार, किसमें ज्यादा टाइम लगता है? तो जाहिर सी बात है इसी में टाइम कम लगता है, और अपने बेसिक मेथड में टाइम ज्यादा लगता है, उस वजह से। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। એક ક્લાસની 30 છોકરીઓના સરેરાશ અંક 58 છે, જ્યારે તે જ ક્લાસના 20 છોકરાઓના સરેરાશ અંક 53 છે, તો આખા ક્લાસના સરેરાશ અંકો કેટલા હશે? તો આ દાખલો હોમવર્કમાં થઈ જશે તમારાથી આરામથી, આપી શકું કે કરાવી દઉં? ચલો કરાવી દઉં। 30 છોકરીઓના, તો કે મેં અહીંયા ગર્લ્સ માની લઉં કે 30 ગર્લ્સ છે, એનો એવરેજ કેટલો છે? એવરેજની વાત કરીએ તો કેટલો છે? 58 છે। આવી જ રીતના હું બોયસની વાત કરું તો કે બોયસ કેટલા છે મારી પાસે? 20 બોયસ છે, તો એનો એવરેજ કેટલો છે? 53 છે। હવે અહીંયા મારે શોધવાનું શું છે? ગર્લ્સ પ્લસ બોયઝ બંનેની સંખ્યા કેટલી થશે? આ એક એક હું નાખી લેતો, 3 ને 2 5 સંખ્યા છે આખી, અને આનો એવરેજ શું હશે એ જ મારે શોધવાનું છે। તો કે એવરેજ શું હશે મારી પાસે? શું માની લઈ? આ દાખલો આપણે એક ફેરે કરેલો છે, તમને કોઈને યાદ આવે છે કે નથી આવતો? કરેલો છે 53 53 58 58 58, યાદ છે? 53 53 58 58 58 5 સંખ્યા હતી, સેમ ક્વેશ્ચન પણ લેંગ્વેજ ફરી ગઈ છે, બીજી કઈ મતલબ જ નથી। તો હું આમાં માની શું લઈ? 53 માની લઉં છું, કેમ કે તેમાંય આપણે 53 ને માન્યા હતા અને 55 ને પણ માન્યા હતા, અને આન્સર શું આવે છે તે તો તમને ખબર જ છે, અને એ જ આન્સર અત્યારે આવવો જોઈએ। તો 53 હું માની લઉં છું, તો કે મતલબ અહીંયા શું આવશે? 53 થી +5 આવશે, અને અહીંયા શું આવશે? 53 હારે 0 આવશે। આ કેટલી સંખ્યામાં છે? તો કે 0 ગુણ્યા 2, મતલબ કે આન્સર આવશે 0, અને આ કેટલી સંખ્યામાં છે? +5 ગુણ્યા 3, મતલબ કે 15 સંખ્યામાં, તો કે +15 છે। કેટલા ટર્મિનિયન છે મારી પાસે? 5 ટર્મિનિયન છે, મતલબ કે +3 આવશે। તો 53 + 3, મતલબ કે 56 મારો આન્સર, ઓપ્શન નંબર એ। કેટલો આસાનીથી આપણા દાખલા સોલ્વ થાય છે તમે ખુદ સમજી શકો છો, કેમ કે તમે અત્યારે એવી ઉંમર ઉપર છો કે તમને સાચા ખોટાની બધાની ખબર છે। આગલો દાખલો જોઈએ આપણે, તો એબીસી 3 ક્રિકેટ ટીમોના ખેલાડીઓની સંખ્યાનું અનુપાત। એ છે, એક બી છે અને એક સી છે, અને એમાં ખેલાડી કેટલા છે? તો 2:5:3 ના અનુપાતમાં છે, અને ત્રણેય ખેલાડીઓનો રનનો સરેરાશ। તો કે રનનો સરેરાશ કેટલો છે આપણી પાસે? એવરેજ કેટલો છે? તો કે એવરેજ છે આપણી પાસે 30, 17 અને 25 છે। તો ત્રણેય ટીમના પ્રત્યેક ખેલાડીઓનો એવરેજ શું હશે? તો કે એ પ્લસ બી પ્લસ સી। તો કેટલા વિદ્યાર્થી થશે? કેટલા ખેલાડી કેટલા થશે? સોરી, 5 અને 2 7, 7 અને 3 10 થશે। તો આનો એવરેજ કેટલો હશે? તો આપણે ધારીશું લઈશું, એવરેજ ધારીશું લઈ, આ બંને વચ્ચેની સંખ્યા ધારી લેશું। તો એવરેજ હું ધારી લઉં છું 17, ચલો 17 હું ધારી લઉં, તો કે આ મારી પાસે 0 આવી ગયું, મને કોઈ ફરક નથી પડતો। તો હવે આ 17 છે એ કેટલા વધારે છે? તો હું ડિફિકલ્ટ વર્ડ ધારું છું હું, કેમ કે સારો વર્ડ પણ ધારી શકું છું, પણ ડિફિકલ્ટ વર્ડ ધારવાથી આપણને એકચ્યુઅલમાં ખબર પડે કે આમાં ક્વેશ્ચનમાં ડિફિકલ્ટી કેટલી છે। તો 17 થી 33 જવા માટે મારે શું કરવું પડશે? 17 થી 30 જવા માટે મારે શું કરવું પડશે? તો કે +13 કરવા પડશે। તો કે +13 કરવા પડશે, એના હિસાબે 2 ના હિસાબે, મતલબ કે +26 કરવા પડશે। 17 થી 25 જવા માટે મારે શું કરવું પડશે?
तो कि 3 आ ने 5 ओला प्लस 8 करवा पड़शे। केना हिसाबे? 3 ना हिसाबे, मतलब कि 24, 24 અને 26 આ બેનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે। તો એક આમાં નાખી દઉં તો ભાઈ 25 થઈ જાય, મતલબ કે પ્લસ 50 થશે। પ્લસ 50 કેના હિસાબે થશે આપણી પાસે? તો કે 5, 3 અને 2 10 ના હિસાબે, મતલબ કે પ્લસ 5 મારી પાસે જવાબ। તો 17 પ્લસ 5 કેટલા આવશે મારી પાસે? 3 આ ને 2 ઓલા, મતલબ કે 22। હવે આની જગ્યાએ મેં 20 ધાર્યો હોત તો થોડોક સહેલું થઈ જાય। સમજાઈ ગયું ને? વસ્તુ આ છે, કેમ કે તો 17 જે 0 આવ્યો અહીંયા નેગેટિવ ટર્મિનલ આવી જાય તો માઈનસ થઈ જાય। એવા માટે એવરેજ આપણે આપણા હિસાબથી લેવાનો અને આપણા તમારા માઇન્ડ ઉપર જ આધાર કરે છે। આખું મેથ્સ તમારા માઇન્ડ ઉપર છે। હું પહેલેથી છેલ્લે લગીને તમને કહું છું, કોઈ પણ શિક્ષક તમારા મેથ્સની તમને ટ્રિક કહી શકે છે, તમને સોલ્વ કરાવવાની મેથડ કહી શકે છે, પણ મેથડ તમને તમારે કેવી રીતના એપ્લાય કરવું એ તમને ખબર હોવી જોઈએ। આગળ વાત કરીએ તો 50 વિદ્યાર્થીઓના એક ક્લાસમાં 22 છોકરીઓ છે, તેણે પરીક્ષામાં સરેરાશ 55 અંક મેળવ્યા છે। જો આખા ક્લાસના સરેરાશ અંક 42 હોય તો છોકરાઓના સરેરાશ અંક કેટલા થાય? થોડોક પ્રશ્ન ડિફિકલ્ટ છે અને થોડોક પણ અઘરો પણ છે। જોઈએ આપણે તો કે કુલ વિદ્યાર્થી કેટલા છે આપણી પાસે? પ્રશ્ન આપણી મેથડથી સાવ આરામથી સોલ્વ થઈ જશે, પણ જોજો તમે 50 વિદ્યાર્થીઓ છે। કુલ વિદ્યાર્થી કેટલા છે મારી પાસે? 50 વિદ્યાર્થી છે। તો કે 50 વિદ્યાર્થી છે એનો એવરેજ કેટલો છે મારી પાસે? એક ક્લાસમાં 22 છોકરીઓ, સોરી, એમાંથી ટોટલ કેટલા છે આપણી પાસે? આ ટોટલ વિદ્યાર્થી છે એમાંથી છોકરીઓ, મતલબ કે ગર્લ્સ કેટલી છે? 22 છે। વધઘટ એના કેટલા વધશે આપણી પાસે? બોયઝ, બોયઝ કેટલા વધશે આપણી પાસે? 28 વધશે, કે બીજું કઈ વધશે? 50 વિદ્યાર્થી છે તો કે 28 જ વધવા જોઈએ ને? 30 અને 22 અને 8 30, 30 અને 20 50 વિદ્યાર્થી ટોટલ થઈ ગયા। તો એમાંથી 22 છોકરીઓએ પરીક્ષામાં સરેરાશ 35 અંક મેળવ્યા। તો આનો એવરેજ કેટલો છે આપણી પાસે? આનો એવરેજ કેટલો છે? 35 એવરેજ મળ્યો। તો આખા ક્લાસનો સરેરાશ એવરેજ 42 છે। ચલો, આ છે 42। તો કે આ શું હશે? આ શું હશે? તો હવે આ પ્રશ્નમાં આપણે પહેલા શું કરતા હતા એ જોઈએ આપણે। પહેલા શું કરતા હતા? આ એવરેજ જે પણ આપણો 42 એવરેજ છે, જે આ 42 એવરેજ છે એને આપણે ધારતા હતા। પછી પ્લસ માઇનસ જે કરતા હતા એ કરતા હતા, અને બાકી આ બાજુ આપણું આખું બેલેન્સ હોવું જોઈએ। સમજાઈ ગયું? આ બાજુ આખું આપણું બેલેન્સ હોવું જોઈએ। તો હવે આપણે આ સંખ્યા તો ખુદ આપી દીધી છે। તો કે સંખ્યા ક્યાં અઘરી છે આપણી પાસે? ખુદ સંખ્યા આપણને આપી દીધી છે। તો આને શું કરશું? પેલી વસ્તુ તો આને આપણે કાપી લેશું। 2 વડે કાપી તો કેટલા વધશે? 11। 2 વડે કાપી તો કે 14 અને 2 વડે કાપી તો કે 25, બરાબર છે? 11 ને 14 25, તો આપણી પાસે સંખ્યા જ વળી ગઈ છે। આપણે આના હારે કઈ મતલબ નથી હવે। તો આ 42 થી મારે 35 જ આવવું હોય તો શું કરવું પડશે? પહેલી વસ્તુ તો એ મને કહો, 42 થી 35 જવું હોય તો મારે શું કરવું પડશે? કે -7 કરવા પડશે। તો કે -7 એટલે કે ગુણ્યા 11 એટલે કે -77 થશે। તો હવે આ -77 થશે એને શું કરતા હતા આપણે? જેટલી સંખ્યામાં છે એટલી સંખ્યામાં એને આપણે ડિવાઈડ કરી દેતા હતા, બરાબર છે ને? પણ તો હવે એક્ચ્યુઅલમાં આપણે શું કરવાનું છે? કેમ કે સંખ્યા આપણે જોઈ છે અહીંયા, તો કે અહીંયા શું કરવું પડશે? આ બે તરાજુ હંમેશા બેલેન્સમાં હોવા જોઈએ, બરાબરની આ સાઈડને ટર્મિનલ મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે સરેરાશનો મતલબ જ એ છે કે આ બાજુ બંને બેલેન્સમાં હોવા જોઈએ। તો કે 77 છે તો કે અહીંયા મારે +77 કરવા પડશે, અને +77 કેટલાના હિસાબે થશે? +77 કરવા પડશે મારે। તો +77 કેટલાના હિસાબે થશે? તો કે તે થશે 14 ના હિસાબે। તો આને હવે 7 કરીએ આપણે, 7 વડે ભાંગી તો 11 સત્તા 77 અને 7 દુ 14, મતલબ કે 5.5 પ્લસ કરવા પડશે મારે। 5.5 પ્લસ કરવા પડશે, તો 5.5 પ્લસ હું કેમાં કરીશ? તો કે 5.5 પ્લસ મારે 5.5 પ્લસ મારે આમાં કરવા પડશે। તો કે 5 આ અને 7 આ, મતલબ કે 47.5 મારો જવાબ। તો છોકરાઓનો સરેરાશ કેટલો હશે? 47.5। ત્યારે તો બંનેનો 42 થયું, કેમ કે છોકરીઓનો 35 જ છે, તો એનો વધારે હોવો જોઈએ ને? સિમ્પલ સી વાત, સમજાઈ ગયું? હવે આપણે વાત આગળ વધારીએ તો પ્રશ્ન છે, 16 વિદ્યાર્થીઓના એક ક્લાસમાં 20 છોકરીઓના સરેરાશ અંક કેટલા છે? 40 છે। તો છોકરાઓને કેટલા સરેરાશ અંક મળે જેથી ક્લાસના સરેરાશ અંક 60 થાય, બરાબર છે? તો હવે આમાં શું કરશું આપણે? પેલી વસ્તુ તો અહીંયા ટોટલ વિદ્યાર્થી લખી લઈએ આપણે બસ। ટોટલ વિદ્યાર્થી કેટલા છે? 60 વિદ્યાર્થી છે, બરાબર છે? એમાંથી 20 છોકરીઓનો, મતલબ કે ગર્લ્સ કેટલી છે? 20 ગર્લ્સ છે, પ્લસ મારી પાસે બોયઝ કિતના આવશે? કેટલા આવશે? સોરી,
20 કેટલા આવશે? 40 ત્યારે તો 60 થશે. 0 0 હું એમનેમ જ કાઢી નાખું. હવે એવરેજની વાત કરી છે આપણે. એવરેજની વાત કરી છે કે તો આખા ક્લાસનો સરેરાશ કેટલો છે? આખા ક્લાસનો સરેરાશ છે 60. એમાંથી 20 છોકરીઓનો સરેરાશ અંક કેટલા છે? 40 છે. તો આના સરેરાશ અંક કેટલા હશે કે જેના કરીને આ 60 થશે? બરાબર છે. તો એના માટે શું કરશું? સિમ્પલ છે. અહીંયા 20 મૂકી દો ને 60 આવી જાય. પણ એવી વાત નથી. આગળ જોવું પડશે આપણે. તો આને જોઈએ આગળ આપણે. તો આ 20 થી 60 જવા માટે શું કરવું પડશે? 60 થી 40 જવા માટે શું કરવું પડશે આપણે? -20 કરવા પડશે. કેના હિસાબે? બે સંખ્યાઓના હિસાબે. તો કે -40 આવશે. તો અહીંયા શું આવશે આપણી પાસે? +40 આવશે. કેના હિસાબથી આવશે +40? તો કે 4 સંખ્યાઓના હિસાબથી. મતલબ +40 કેટલી સંખ્યાના હિસાબે આવશે? 40 મતલબ કે 10 10. તો આપણી પાસે આ કેટલા છે? 60 આપણે એવરેજ જે માન્યો હતો એમાં +10 કરવા પડશે. મતલબ કે +70 આવશે. સમજાઈ ગયું? સિમ્પલ વાત છે. જે વસ્તુ કહેવામાં આવે છે તે જ કરવાની છે. તેના સિવાયની આપણને કાંઈ પણ વસ્તુ એક્સ્ટ્રા કે આ તે કંઈ કરવાની થતી નથી. આગળ જાય છે. 4 સંખ્યાઓના સરેરાશ 50 છે. તેમાં 3 સંખ્યા 40, 58, 51 છે. તો ચોથી સંખ્યા શું હશે? સિમ્પલ સી વાત છે. આપણી પાસે 4 સંખ્યા છે. નંબર ઓફ સંખ્યા કેટલી છે? 4 સંખ્યા છે. એનો એવરેજ કેટલો છે? 50 છે. બરાબર છે. એમાંથી એક સંખ્યા છે 40, બીજી સંખ્યા છે 48, ત્રીજી સંખ્યા છે 51 અને ચોથી સંખ્યા શું હશે એ શોધવાની છે. આપણે સાદી રીતના વાત કરી તો કે આ બધાનો સરવાળો આમાં શું થશે? સાદી રીતના વાત કરીએ તો એ કે 40 +48 +51 +1 એના છેદમાં 4 બરાબર મારી પાસે કેટલા આવવા જોઈએ? 50. બરાબર છે. આ જ આપણો જવાબ હોવો જોઈએ. આના સિવાયનો કાંઈ જવાબ છે આપણી પાસે નથી. બરાબર ને? તો આમાં શું કરશું આપણે? તો કાચા આ બાજુ આવશે તો 5 ચોક 20 200 થઈ જશે. મતલબ કે 40 +48 +51 +1 બરાબર મારી પાસે 200 આવ્યું. તો હવે હું આ બધાનો સરવાળો કરી લઈ તો કેટલા આવશે મારી પાસે? 8 અને 1 9. તો 9 એમનેમ, 4 અને 4 8. 8 અને 2 10 ને 3 13. 139 +1 બરાબર 200. બરાબર. હવે x જ મારે જોઈએ છે તો કે 200 -139 કરી તો 9 અને 1 10 હાસિલનો 1 4 અને 6 10 વત્તા 1 0 61. શું જવાબ આવ્યો મારી પાસે? 61. તો 61 તો કે ઓપ્શનમાં જ નથી. હવે શું કરશું? તો કે ઓપ્શનમાં જ નથી. હવે શું કરશું? દેખાય છે તમને? આ ઓપ્શન છે એ અહીં નથી. એવા હોય કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. હવે આને આપણી રીતના કરી તો શું કરશું? એવરેજ 50 છે. ચલો 50 માની લીધા મેં. મારે બીજું કંઈ કરવું જ નથી. 50 મેં માની લીધા. તો શું કરશું આપણે? 40 ને 40 80, 80 ને 120 ને 130, 30 ને 139 બરાબર 61 જ આવશે. તો હવે હું 40 મેં માની લીધા. 50 તો આપણી પાસે ઓલરેડી એવરેજ છે જ તો 50 જ રાખો. તો કે 40 જવા માટે શું કરવું પડશે? -10. 48 જવા માટે +8. 51 જવા માટે +1. તો હવે અહીંયા શું સંખ્યા આવશે? તો અહીંયા શું સંખ્યા આવશે? ઈ જ શોધવાની છે આપણે. તો પહેલા આને જોઈ લઈએ આપણે. -10 માઈનસ +1 અને કેટલું થશે? +1. મતલબ કે 8 અને 1 9. 9 થઈ ગયું. એમાંથી આને શું કરવાનું છે આપણે? 9 અને 10 તો -1 આપણી પાસે આવ્યો. તો કે -1 આવ્યો તો આમાં આપણે શું કરવું પડશે? +1 કરવું પડશે. +1 આપણે કેમાં કરવું પડશે? તો કે +1 કરવું પડશે આપણે આમાં. તો +1 આમાં આપણે કરશું તો શું આવશે આપણી પાસે? +1 કરો તમે તો શું આવશે? 51. તો આ સંખ્યા શું હશે? 51. બીજી કઈ સંખ્યા જ નહીં હશે. 51 શું છે? 4 4 5 13 40 45 51. તો આ સંખ્યા શું આવી જોઈએ? 51 અને આમાં આવે છે 61. એનો ડિફરન્સ શું થયો? આપણી કેલ્ક્યુલેશનમાં થોડીક મિસ્ટેક થઈ જે છે તમે કરી લઈએ. તો 8 અને 1 9 બોલો. પછી 4 અને 4 8. 8 ને 1 9 અને 10. 10 અને 3 13 139. મતલબ ઓપ્શનમાં મિસ્ટેક છે અને કાં તો
ક્વેશ્ચનમાં મિસ્ટેક છે, એના સિવાયનો કાંઈ મતલબ નથી. આ વસ્તુ હોય તો અહીંયા 51 આવવા જોઈએ. આગળ જોઈએ આપણે 9 સંખ્યાઓનો સરેરાશ કેટલો છે? 87 છે. તેમાં પ્રથમ 5 સંખ્યાઓનો સરેરાશ 79 છે અને પછીની 3 સંખ્યાઓનો સરેરાશ 92 છે. તો 9મી સંખ્યા શું હશે? સિમ્પલ સી વાત છે. 9 સંખ્યા છે. મારી પાસે ટોટલ સંખ્યા કેટલી છે? ટોટલ સંખ્યા કેટલી? ટોટલ નંબર ઓફ કેટલી સંખ્યા છે? 9 છે. તેનો એવરેજ કેટલો છે? તો કે એવરેજ છે 87. બરાબર છે. તેની બરાબર જ આપણે જેટલી વસ્તુ છે તેટલી કરવાની છે. તેની બરાબર શું આવે છે? પ્રથમ 5 સંખ્યાનો મતલબ કે પ્રથમ 5 સંખ્યા નંબર કેટલા છે? 5 સંખ્યાઓનો સરેરાશ કેટલો છે? તો કે 79 છે. એના સિવાયની પછીની 3 સંખ્યાઓનો પછીની 3 નંબરનો પછીના 3 સંખ્યાનો સરેરાશ કેટલો છે? કે 92 છે. તો કે 9મી સંખ્યા શું હશે? તો 9th નંબર શું હશે? આજે આપણે શોધવાનું છે. એના સિવાયનું તો કંઈ શોધવાનું નથી. તો આપણી પાસે 87 તો ઓલરેડી એવરેજ આપેલ છે. કેટલો આપેલ છે? 87 તો ઓલરેડી એવરેજ આપેલ છે. 87 થી 79 એ જવા માટે શું કરવું પડશે? 7 - 1 અને બીજો 1 એટલે 8 માઇનસ કરવા પડશે મારે. 8 માઇનસ કેના હિસાબથી થશે? કે 5 ના હિસાબથી બરાબર -40 અને 87 થી 92 એ જવા માટે શું કરવું પડશે? 3 આમાં ને 2 ઉમાં મતલબ કે +5 કરવા પડશે. કેના હિસાબે? 3 ના હિસાબે મતલબ કે +15. હવે +15 માંથી +40 જાય તો શું કરવું છે? આવશે આપણી પાસે -25 આવ્યા. તો -25 તો અહીંયા શું કરવું પડશે આપણી પાસે? +25 કરવા પડશે. તો +25 કેમાં કરશું આપણે? કેમ કે 9 નંબરની એક જ સંખ્યા છે. એવરેજ નથી પૂછ્યો એ. 9 નંબરની એક જ સંખ્યા પૂછી છે ખાલી. એવરેજ પૂછ્યો હોત તો શું કરત? 2 વડે આપણે ભાંગી અને એવરેજ વધારે. તો અહીંયા શું કીધું છે? +25 કરવા પડશે. કેમાં કરશે? જે આપણે એવરેજ ધાર્યો તો તેમાં મતલબ કે 87 + 25 5 ને 5 10 ને 2 12 નો પકડો બધા આવી 10 ને 1 11 તો 112. 9 નંબરની સંખ્યા શું હશે? 112. ઓપ્શન નંબર ડી. કેવી મજા આવી? થઈ ગયું ને આરામથી સોલ્વ. હવે આગળ વાત કરીએ આપણે. 7 સંખ્યાઓનો સરેરાશ 34 છે. તેમાં પ્રથમ 3 સંખ્યાઓનો સરેરાશ 28 છે તથા પછીની 2 સંખ્યાઓનો સરેરાશ 47 છે. તો છેલ્લી 2 સંખ્યાઓનો સરેરાશ કેટલો થાય? તો છેલ્લી 2 સંખ્યાઓનો સરેરાશ કેટલો થાય તે જ તમારે શોધવાનો છે. તો કેવી રીતના શોધશો તમે? તો ચલો આપણે ટોટલ સંખ્યા માની લઈએ. ટોટલ સંખ્યા કેટલી છે? તે 7 છે. એનો એવરેજ કેટલો છે? 34. એનો 7 સંખ્યાનો એવરેજ છે. બરાબર છે. હવે જે વસ્તુ થશે તે આના બરાબર જ થશે આપણી બધી. એમાંથી પ્રથમ 3 સંખ્યા તો કે પ્રથમ 3 સંખ્યા 3 નંબરનો સરેરાશ કેટલો છે? 28 છે. પછીની 2 સંખ્યા તો કે પછીની 2 સંખ્યાનો સરેરાશ કેટલો છે? તો પછીની 2 સંખ્યાનો સરેરાશ છે 47. તો 3 ને 2 5 વાહે વધી કેટલી? વાહે 2 વધી. છેલ્લી 2 સંખ્યાનો સરેરાશ કેટલો હશે? તો 34 થી 28 જવા માટે શું કરવું પડશે આપણે? 34 થી 28 જવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? પહેલી વસ્તુ તો ઈ તો કે 4 આ અને 2 ઓલા -6 કરવા પડશે. કેના હિસાબે? 3 તો કે -18 કરવા પડશે. બરાબર છે. આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. હવે 34 થી 47 જવા માટે શું કરવું પડશે? 6 આ અને 7 ઓલા 6 ને 6 12 ને 1 13 તો કે +13 કરવા પડશે. કેના હિસાબે? 2 ના હિસાબે મતલબ -+26. હવે આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ લઈએ આપણે તો આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું આવશે? તફાવત શું આવશે? આ બે વચ્ચેનો તફાવત જોતો હોય તો મારે કેટલો આવશે? 18 કાઢવાના છે મારે. તો 18 થી 26 હું જાય તો કેટલા થઈ જશે? 2 આ અને 6 ઓલા. તો મતલબ શું થશે? +8 થશે. તો +8 થશે તો અહીંયા મારે શું કરવું પડશે? -8 કરવા પડશે. તો કે -8 કરવા પડશે. તો -8 મારે કેવી રીતના કરવા પડશે? તો બે સંખ્યાઓના હિસાબે -8 કરવા પડશે. તો ડિવાઈડમાં 2 મતલબ કે -4 આવશે. તો કે અહીંયા મારી પાસે આ ખાનામાં શું જવાબ આવશે? -4 આવશે. તો અહીંયા શું આવશે મારી પાસે? જે મેં એવરેજ ધાર્યો હતો, આ 34 ધાર્યો હતો, તો કે 34 - 4 બરાબર આ બે સંખ્યાઓનો સરેરાશ કેટલો હશે? 30. ઓપ્શન નંબર બી. આરામથી સોલ્વ થઈ ગયો. હવે આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા જ એન્ડ કર્યું છે. કાલે આપણે સરેરાશ પાર્ટ 2 શું જોશું? એવરેજ પાર્ટ 2 અને કાલે મેક્સિમમ 50% ચેપ્ટર. આજે તો ખાલી બેઝિક માહિતી લીધી છે કે જેમાંથી ક્યારેક ક્યારેક પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય છે તે. તો ચાલો મળીએ ફિર હવે